Hello dear students from Good Shepherd Higher Secondary School, myself DM Sharma. Once again I welcome you all on my YouTube channel Aditya Education. I am back with the first video of time series, the fourth lesson of statistics subject, standard 12th, Gujarat board. Friends, in today's video, we are going to study the define of time series, the importance of time series and the components of time series. So without wasting time, let's start. So friends, chapter number 4, time series. First of all, we will see the introduction. Two related variables are studied by different methods in statistics. For example, linear correlation, linear regression, etc. One more special method can be applied to study the dependent variable among these related variables by taking time as an independent variable. The data related to values of the variable changing with time are studied in economics, sociology and business statistics. For example, population of a country, agriculture production, wholesale price index, import-export information, annual production of a factory, share market, hourly temperature measured in a city, etc. are presented with respect to time. फ्रेंड्स, ऐसे वेरिएबल्स जो बदलते समय के साथ बदल जाते हैं, ऐसे वेरिएबल का डेटा वो इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में स्टडी किया जाता है. जैसे कि पॉपुलेशन, किसी भी देश की पॉपुलेशन वो कांस्टेंट नहीं रह सकती, उसमें चेंजेस आते हैं. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कभी भी सेम नहीं रह सकता, प्रोडक्शन भी घटता और बढ़ता रहता है. होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंफॉर्मेशन, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री, शेयर मार्केट, आवरली टेम्परेचर, ये सभी ऐसे वेरिएबल्स हैं जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं. नाउ वी विल सी द मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज. फ्रेंड्स, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. This question has been asked so many times in board exam, the meaning of time series. So please pay attention and learn this define. The statistical data collected at specific intervals of time and arranged in a chronological order is called a time series. यानी ऐसा स्टैटिस्टिकल डेटा जो निश्चित टाइम पीरियड के दौरान कलेक्ट किया गया हो और उस डेटा को घटना घटित होने के क्रम में अरेंज किया गया हो, ऐसे स्टैटिस्टिकल डेटा को टाइम सीरीज कहते हैं. नाउ फ्रेंड्स, वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज. द फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज द डायरेक्शन एंड पैटर्न ऑफ वेरिएशंस इन द वैल्यूज ऑफ द सीरीज कैन बी नोन फ्रॉम द पास्ट डेटा. यानी टाइम सीरीज की वैल्यू में होने वाले बदलाव और बदलाव की पैटर्न को पास्ट डेटा यानी कि पुराने डेटा से समझा जा सकता है. सेकंड पॉइंट, the variations in the future can be estimated from the extent of variation in the value of the series. टाइम सीरीज की वैल्यूज़ में आए हुए बदलाव के बेस पर हम फ्यूचर में जो बदलाव आ सकते हैं उसका एस्टिमेशन कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट, important decisions can be taken from the estimated values of future and industrial as well as government policies can be easily framed. यानी कि टाइम सीरीज के आधार पर फ्यूचर में होने वाले चेंजेस का जो हम एस्टिमेट करते हैं या एस्टिमेशन करते हैं, उससे फ्यूचर में लिए जाने वाले इम्पोर्टेंट डिसीजंस को काफ़ी हेल्प मिलती है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी या गवर्नमेंट पॉलिसी को फ्रेम करने में भी टाइम सीरीज काफ़ी हेल्पफुल है. फोर्थ वन, टू और मोर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज कैन मेक अ कंपैरेटिव स्टडी फ्रॉम द डेटा ऑफ द टाइम सीरीज ऑब्टेन बाय देम. यानी कि दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या इंडस्ट्रीज़ अपने बीच कंपैरेटिव स्टडी कर सकती हैं, यानी अपने रिज़ल्ट को दूसरे रिज़ल्ट के साथ कंपेयर कर सकती हैं, जिससे उन्हें डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है. नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. सो फ्रेंड्स, देयर आर टोटल 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. फर्स्ट वन, लॉन्ग टर्म कंपोनेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेंड and it is denoted by capital T. This small t denotes the time series. Second, seasonal component which is indicated by ST, where S means seasonal and
Small t indicates time series in which two factors are affecting it: effect of natural factors and effect of man-made factors. The third component is cyclical component, which is denoted by Ct, and the fourth one random or irregular component, which is denoted by Rt. So let us understand these all one by one. So friends, the first component of time series is long term component, which is known as trend, and it is denoted by capital T. The variation seen in the variable of a time series over a very long period of time is the effect of लॉन्ग टर्म कंपोनेंट और ट्रेंड. यानी कि टाइम सीरीज़ के वेरिएबल्स की वैल्यू में अगर कोई बदलाव काफ़ी लंबे समय के बाद देखने को मिले तो इस टाइप के बदलाव को या चेंज को हम लॉन्ग टर्म कंपोनेंट या ट्रेंड कहते हैं. द वेरिएबल ऑफ टाइम सीरीज is generally found to have a continuous increase or decrease. For example, decreasing value of rupee in the international market. Second, increasing uses of mobile phones. And third, rising population of a country. तो ये सभी चेंजेस वो काफ़ी लंबे समय के बाद हमें देखने को मिलते हैं या इनकी असर काफ़ी लंबे समय तक रहती है. इसीलिए इस टाइप के चेंजेस को हम लॉन्ग टर्म कंपोनेंट या ट्रेंड कहते हैं. An interval of 10 to 15 years is required to know the trend in agriculture yield or industrial production, whereas it may be clear within 4 to 5 years in the sale of electronic goods. यानी कि एग्रीकल्चरल यील्ड या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ट्रेंड जानने के लिए एटलीस्ट 10 से 15 साल तक का टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर आए हुए बदलाव या उससे रिलेटेड ट्रेंड्स को जानने के लिए 4 से 5 साल का टाइम पीरियड रिक्वायर होता है. सेकंड, सीजनल कंपोनेंट विच इज़ डिनोटेड बाय ST. द वेरिएशन ऑकरिंग इन द टाइम सीरीज वेरिएबल ऑलमोस्ट रेगुलरली ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज़ द इफेक्ट ऑफ सीजनल कंपोनेंट. यानी कि टाइम सीरीज़ के वेरिएबल्स में जो बदलाव रेगुलर बेस पर होते हो और बहुत कम समय के लिए जो बदलाव होते हो, ऐसे बदलाव को हम सीजनल कंपोनेंट के नाम से जानेंगे. द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सच वेरिएशंस इज़ यूजुअली लेस देन अ ईयर. ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सीजनल कंपोनेंट में जो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड होता है वो 1 साल से कम का होता है. The effect of seasonal component on time series can be seen in 2 ways. First, effect of natural factors, and second, effect of man-made factors. The first, effect of natural factors, means the variations in the values of the time series occur in oscillation with the seasons or weather fluctuations are made as effect of natural factors. For example, demand for fan, AC, coolers, etc. increases during summers, whereas demand of woolens increases in winter. यानी कि टाइम सीरीज़ के वेरिएबल्स में मौसम के कारण या सीज़न के कारण अगर कोई बदलाव होता है तो उसे हम इफ़ेक्ट ऑफ नेचुरल फैक्टर्स कहेंगे. जैसे कि गर्मी के समय में पंखे और AC या कूलर की डिमांड का बढ़ना और विंटर्स के टाइम पे वुलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ना. द सेकेंड, इफेक्ट ऑफ मैन मेड फैक्टर्स. सो द वेरिएशंस ऑकरिंग रेगुलरली इन लेस देन 1 ईयर पीरियड आर कॉज्ड बाय द फेस्टिवल्स, कस्टम्स इन द सोसाइटी, हैबिट्स ऑफ पीपल एट्सेट्रा आर नोन एज इफेक्ट ऑफ मैन मेड फैक्टर्स. यानी फ्रेंड्स, टाइम सीरीज़ की वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस फेस्टिवल्स, रीति रिवाज या समाज के लोगों की आदतों के कारण अगर आते हों तो इस टाइप के चेंजेस को या इस टाइप के फैक्टर्स को हम मैन मेड फैक्टर्स कहेंगे. फॉर एग्जांपल, डिमांड ऑफ ऑर्नामेंट्स ड्यूरिंग मैरिज सीजन,
यानी जब शादियों का समय आता है या शादियों का जब माहौल आता है उस वक्त गहनों की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। काइट्स आर इन डिमांड ड्यूरिंग उत्तरायण। फ्रेंड्स, ये किसी भी धार्मिक किताब में नहीं लिखा कि हम उत्तरायण में पतंग उड़ाएंगे, लेकिन फिर भी समाज में एक परंपरा बन गई है कि हम मकर संक्रांति के दिन या उत्तरायण के दिन पतंग उड़ाएंगे। तो इसे आप हैबिट कहिए या इसे आप कस्टम कहिए, रीति रिवाज कहिए, तो इस फेस्टिवल पर पतंग उड़ाई जाती हैं। यानी 14 जनवरी के आसपास के समय से ही पतंग की डिमांड बढ़ने लगती है। वन मोर एग्जाम्पल, फाफड़ा जलेबी आर इन डिमांड ऑन दशहरा। तो जो लोग गुजरात में रह रहे हैं वो ये बात जानते होंगे कि दशहरे के दिन फाफड़ा जलेबी खाने का एक रिवाज है। ये भी किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं है, बस ऐसे ही एक कस्टम बन गई है, एक परंपरा बन गई है कि आप किसी आम दिन फाफड़ा जलेबी खाएं या ना खाएं, लेकिन दशहरे के दिन ये खाया जाता है। तो इस टाइप के जो चेंजेस हैं वो मैन मेड फैक्टर्स कहलाते हैं। नाउ द थर्ड वन, cyclical component, it is denoted by CT. The variations occurring in the time series variable at approximately regular intervals of more than 1 year are the effect of cyclical component. यानी कि टाइम सीरीज वेरिएबल्स के अंदर जो बदलाव आते हैं वो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रेगुलर इंटरवल्स पर होते हों तो ऐसे बदलाव को हम साइक्लिकल कंपोनेंट कहेंगे। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दीज वेरिएशंस कैन बी 2 to 10 years एंड इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस इट कैन ऑल्सो बी 10 to 15 years। यानी इनका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। तो लगभग ऐसे बदलाव 2 से लेकर 10 साल के टाइम पीरियड के बीच में आते हैं और रेगुलर बेस पर आते हैं, और कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में इनका टाइम पीरियड 10 to 15 years भी हो सकता है। द साइक्लिकल कंपोनेंट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म कंपोनेंट। यानी साइक्लिकल कंपोनेंट का दूसरा नाम शॉर्ट टर्म कंपोनेंट भी है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं बूम और रिसेशन। बूम एंड रिसेशन मीन्स तेजी और मंदी, ये साइक्लिकल कंपोनेंट के एग्जाम्पल हैं। Fourth one, random or irregular component, which is denoted by RT. So if the values in the series change due to sudden and unpredictable causes, the changes are called as random variables. यानी कि टाइम सीरीज वेरिएबल में कुछ बदलाव अचानक से हो जाते हैं जिनके बारे में प्रिडिक्ट कर पाना या अंदाज़ा लगा पाना पॉसिबल नहीं है। अचानक से वो बदलाव कभी भी आ सकते हैं, तो ऐसे बदलाव को हम रैंडम या इरेगुलर कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। द टाइम इंटरवल एंड इफेक्ट ऑफ दिस वेरिएशन इज़ नॉट सर्टेन। यानी ये कितने समय के बाद होंगे इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो इसका टाइम पीरियड कभी भी फिक्स नहीं है, ये होने को कभी भी हो सकता है, आज भी हो जाए, कल भी हो जाए, 5 साल बाद भी हो, 10 साल बाद भी हो। यानी इसके टाइम पीरियड का कोई फिक्स अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स एट्सेट्रा। यानी जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है, तो इस टाइप के जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं वो कब आएंगी इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। और कुछ मैन मेड कैलेमिटीज़ भी हैं लाइक वॉर, स्ट्राइक, रायट्स, पॉलिटिकल अपहेवल एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, कुछ मैन मेड कैलेमिटीज़ भी हैं जैसे कि वॉर यानी युद्ध। कब किन 2 देशों के बीच वॉर छिड़ जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कब वर्कर स्ट्राइक पर उतर जाएं, कब देश में दंगे भड़क जाएं, या कब राजनीतिक बदलाव हो जाए, ऐसा हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इस टाइप के जो बदलाव हैं वो रैंडम या इरेगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, वी स्टॉप हियर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स that I have explained today. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, या आप मुझे मेरे मेल आईडी पर भी मेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. Friends, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलता रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।